Now coming on to the question number 3. What is the 3? Question number, find the product. Product means again आपको multiply करना है बेटा. There are 3 terms, this and this. आपको तीनों terms को multiply करना है. So first multiply all the numericals. No numerical, here is 2, here is 4. So 2 4s are 8. Now count the 8. 2, 22 and 26. 26 and 2 is 28. 28 and 2 is 48. 48 and 2 is 50. So A कितने हो गए total? 50. So 8A 50. Very simple. Now multiply the numericals first. तो you can write it like this also कि आपने numericals को एक bracket में लिख लिया and x y multiply by x square y square. आपने variables को एक bracket में लिख लिया. न्यूमेरिकल्स को एक ब्रैकेट में लिखने से इतना होता है कि आपको इजी हो जाता है अगर कोई कैलकुलेशन कैंसिल होनी है तो 2 1s are 2, 2 5s are 10. ठीक है, सो नो मोर कैंसिलेशन हियर. सो न्यूमेरिकल्स क्या बचेंगे? माइनस नो 3 and 3 3s are 9 here also. So what will left? minus 3 by 5. And what is this? xy into x square y square. So x and x square, that is x cube, and y square is y cube. So this will become x cube, y cube, and 3 and 3, 9 cancel, 2 and 10 cancel. So answer remaining is minus 3 by 5. So minus 3 by 5, x cube, y cube will be the answer. In this question again, what we will do, ki we will write the numerical part in one bracket and the variable part in the other bracket. Right? So 5 1s are 5, 5 2s are 10. As you know, we can cancel the numerator and denominators. Numerator cancel नहीं हो सकते, denominator नहीं हो सकते. So 5 and 10. 5 1s are 5, 5 2s are 10, which is minus sign as it is. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So what numerical part is we are left with? minus 4. So minus 4 and variables को आप multiply करते हैं तो P 3 here, 1 here, P4, and Q again 3 here, 1 here is Q4. This will be the answer. Coming on to the last part of question number 3. Simple multiplication है x का, कुछ mention नहीं है तो as you know it is 1, 4, 4 plus 3 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10. So x power 10 will be the answer. Simple product questions है, multiply करना है variables को एक साथ और numerical part को एक साथ. That is it. Now moving on to the question number 4. Question number 4 is simplify for the values x3 first part, second part x is equal to 1 by 2. What does it mean? कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5 प्लस 3. इसमें आपको दो पार्ट्स के लिए सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट में यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 3, देन यू विल सॉल्व, and for other part you will put the value of x as 1 by 2. So first we will do the questions by putting x is equal to 3. That is the first part. So putting x की जगह पे आप 3 पुट करेंगे. ठीक है, अगेन x की जगह 3, 3 3s are 9. If I am not putting any sign, ये ध्यान रखना है जब दो चीजों के बीच में कोई साइन नहीं है that means वहां मल्टीप्लीकेशन साइन होता है. 3x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 3 3s are 9. 4x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 4 3s are 12 माइनस 5 प्लस 3. एज यू नो हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है, सो 12 माइनस 5 इज 7 प्लस 3. एंड बॉडमास रूल को अगर हम फॉलो करते हैं बेटा, जो कि हर जगह पे हमें करना होता है, तो मल्टीप्लीकेशन पहले होता है. सो व्हाट वी विल डू, 9 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. 63 प्लस 3 दैट इज 66. So first part का आंसर है 66. Now I am doing the second part here with value x1 by 2. Question is same, expression आपका same है 4x minus 5 plus 3. Now putting value of x as 1 by 2. I have changed the bracket because यहाँ पे भी small bracket था, तो you will get confused just because of brackets, तो मैंने वो change किया. Now 3 multiply by 1 by 2 because इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो 3 multiply by 1 is 3 upon 2.
नाउ 4 इन मल्टीप्लाई बाय 1/2 में 4 and 2 का कैंसिलेशन होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So we are left with 2 only, 2 minus 5 plus 3. 3/2 multiply by what we will left with in the bracket is -3 plus 3. पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग. सो व्हाट विल बी द आंसर? -9/2 प्लस 3. अब क्या होगा? अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा 1 लिखकर. 2 and 1 का एलसीएम इज 2. ठीक है, -9 एलसीएम लेना सबको आता है बिकॉज यहाँ पे 1 है तो 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को. सो -9 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू -3/2. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट विद वैल्यू 1/2. सो डिफरेंट वैल्यूज है x3 x1/2, तो दोनों पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट का आंसर 66, सेकेंड पार्ट का आंसर -3/2. मूविंग ऑन टू द बी पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. दिस इज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है 3 डिफरेंट पार्ट्स में. दिस इज द एक्सप्रेशन जिसके लिए हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट आपको a की वैल्यू 0 पुट करके एक बार सॉल्व करना है. सेकेंड पार्ट में आपको सेम एक्सप्रेशन के अंदर a की वैल्यू 1 लेनी है. थर्ड पार्ट के अंदर सेम एक्सप्रेशन में आपको a की वैल्यू -1 लेनी है. सो फर्स्ट हम a की वैल्यू 0 लेके क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5. बेटा a की वैल्यू 0 पुट करनी है. ठीक है, यहाँ पे हमने 0 पुट किया. 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस 5. यू नीड नॉट टू सॉल्व इट फर्दर बेटा. यू नो यहाँ पर कुछ भी आंसर आए उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बिकम 0. सो 0 प्लस 5 विल बी 5. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट A1. ठीक है, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एज 1. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5. 1 का स्क्वायर मतलब 1 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही रहेगा. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 बिकम 3 प्लस 5. मल्टीप्लीकेशन पार्ट वी डू फर्स्ट. सो 3 प्लस 5 that will become 8. So second part answer is 8. Coming on to the third part, expression again is the same. Now putting value of a as -1. ठीक है, -1 -1 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 into -1 which is again becomes +1 plus 1. Now here plus minus will become -1 plus 1 plus 5. ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल 0 प्लस 1. -1 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस 5. -1 को आप 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी -1. -1 प्लस 5 प्लस माइनस विल बी माइनस, बताया था ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में. -1 प्लस 5 दैट मीन्स माइनस प्लस विल बी माइनस करना है. सो 5 minus 1 is 4. Answer is of the bigger number which is 5. So answer will be in positive. ठीक है, so this is the answer of third part. Now moving on to the last question of this exercise which is question number 5.